Hello, Namaskar, Sat Sri Akal. This is Madhura Sane. I'm founder and director of Nritya Natya Academy. But today, on behalf of Harry Sidhuji and Outland Media, I thank them both for giving me this opportunity to interview and talk with somebody I highly respect, Dr. Atamjit Singh Ji. He is a Sahitya Academy Award winner. He is a Sangeet Natak Academy Award winner. And he's declared as the living legend by National School of Drama, NSD. It is an honor and privilege to have this interview with him and chat with him and learn myself and grow from where I am as an artist and beyond. And hope this interview helps a lot of people who are watching this, as well as we are going to promote our upcoming play, Rishtiaan ki Rakhiye na. And it's going to be staged on April 6th at Cutting Hall, Palatine, near Chicago, Illinois. And if you're around in the area, you should absolutely mark your calendars and make yourself available on that day and attend this play. We will dive deep into what this play is about and everything. But first, I would like to say hello to Dr. Atamjit Singh Ji. He's here with us in this interview, and I would ask him to say a few words. Dr. Atamjit Ji. Uh, Thank you very much, Madhura. Uh, it's a very pleasant kind of interaction. Uh, I'm thankful to you for having spared time to ask certain questions to me on my play, which we are going to, rather you are going to stage Rishtiaan ki Rakhiye na. I'm also very grateful to uh, Outland Media who have organized this interview. What should I say? Except this, that ever since I have reached this city, maybe 1 year and a half back, uh, I was trying to know the theater scene of this city, and I was very happy to see that plays in Urdu, plays in Bangla, Marathi, Hindi, English, the language of the city, they are being staged. But I didn't see the regular activity in Punjabi theater as compared to the population which is living here or there in Chicagoland. So since I have spent 50 years of my life on Punjabi drama and theater, so was trying to explore the possibilities. Luckily, Gurmukh Pullar met me and he tried to establish very successfully Five Rivers Theatre, the group, and we staged last year a play called Sani Sach Kenda Si. That was on mother language, importance of mother language, and that was not restricted to Punjabi language only. I think you also saw that play. So it talks in terms of mother language, whatever and wherever somebody is living, his or her mother language is very important. So this is how I was introduced, and this year I'm happy that we are doing another play that is Rishtiaan ki Rakhiye na, and I would like to share this information with my spectators, viewers, that this play is based upon a very important short story written by Saadat Hasan Manto, a well-known Asian story writer from Pakistan, earlier from India. Saadat Hasan Manto wrote a wonderful story, Toba Tek Singh, which is on partition of India and Pakistan. The play is based upon that story. I think it's a long introduction, but then excuse me for doing so. No, no, this was perfect, and you gave so many important pointers as you were talking. I was noting it, and first of all, the writer of the play, such a prominent writer. I think there is hardly anybody who has even little knowledge about theater who has not heard Monto's name, and there's hardly anybody who has probably seen some Punjabi theater has not heard your name. So, having said that, good and bad is very subjective. I would like to jump to a very general question here about art in general is very subjective. Anything can be good, anything can be bad. People can judge it to be the way you want.
in your opinion, in your judgment or opinion, what is a good playwright or a good play or a good theater? Again, good and bad can be subjective, but in your opinion, in your judgment, in how would you judge a good theater? You have very subtly asked a very difficult question. But then I should be in a position to say something on this. Whether it's theater or any other art, especially the verbal arts, where the language is involved. And I think other arts also, but largely the verbal arts, I would say that should come from life and should go back to life. If society, life, our polity, our psychology, our economy, or something like that is not involved in that, uh, then I think it's just art for the sake of art. You क्या are a बढ़िया wonderful dancer. You are a wonderful dancer, I know. And I had an opportunity to write something on Kathak dance, and I believe your dance is Kathak, and that is Jaipur Gharana. Though you hardly use words in dance, that also is directly connected with the life. If it's Jaipur Gharana, the other kind of life. It's Lucknow Gharana, other kind of life. So it should come from life, go back to life. क्या बात है? I mean, this is probably one of the beautiful answers I've ever heard about theater. Thank you. And Thank you. absolutely right in terms of touching people, right? Theater is all about the message and touching Right. life Very right. and making it better, and absolutely it has to come from life, and beautiful, beautiful. And one thing for maybe an upcoming actors, or even some of the veteran actors, some of their acting shines, some of their acting, as an actor I'm asking this question, some of their acting shines, some of them are satisfied with their acting, some of them are perceived well, some of them are received well, but then some of them are not received well, and some of them feel they've done a good job, लेकिन असल में नहीं होता है. तो आप क्या बोलेंगे as an actor? How do I judge myself after a performance? After, how do I have that connection with my director? How do I judge myself as an actor? A very simple answer. Though performing it or doing it is will be very difficult, but as far as answer is concerned, it's very simple, straightforward. Unless and until an actor on the stage is not able to connect with his co-actors, connect with his lighting, connect with his set, and connect with the people in front of whom he or she is playing a play, she or he cannot be successful. She or he will never be satisfied. It is basically connecting and reaching out to the audience, but not only audience. It has to be your co-actors also. So there's a certain kind of energy which is flowing in the auditorium between artists and the audience, and one artist to other artist. So that is the synergy, that is the totality which is required, and for that only a director is required. Otherwise, everybody is doing his or her role. Correct. And following that, linking to that question, as a director, how do you select your actors? Do you always do auditions? कि आप क्या देखते हैं उस ऑडिशन में या उस एक्टर में? um, I guess you Uh, knew. my selection process is a bit weird. You won't believe. I don't conduct routine kind of auditions. Of course, I have to do it when if I'm going to a college where I need 30 people or 20 people and there are 100 in front of me. I have to do some kind of exercise. Otherwise, Madhura, for me, it is basically the urge inside you that makes an actor. Physically, for me, your voice and your eyes, if they are powerful, you can be a great actor. I have seen people coming to me doing their first play.
Even in this play, the one that you were also participating, I have a first timer who's doing a marvelous role. So depends upon the kind of voice that you have, the kind of eyes that you have, and of course the kind of director that you have, who Hmm. is to gel everything with each other. Wow. And is there one message you can give for what theater you are seeing right now? Maybe in Chicagoland area, maybe in general. Is there any good opinions, bad, whatever? What do you feel about the theater that is going on right now? Let's talk about good things today. Uh, there are always bad also. I saw one play yesterday that was a Marathi play. Hmm. I was so much happy the way it went. I mean, the actors were good, script was good, but most important for me was that the whole hall was full and Hmm. it was a ticketed play. It was not a very small amount. It was $45 per head and hall was full and people were hooked to the performance and the performance was very serious. That gives me hope. Of course, Marathi and Bengali people, they have an edge over other people in India. But I think if we start giving theater regularly to the people, then naturally there is a food for thought in theater. There Hmm. are problems of our life. There are laughters, there are joyful moments, there are pensive moments, there are profound things which are said there, and one can go back and talk about it and think about it and can indirectly participate in. So this is a kind of creative thing which is community oriented. Whole of the community is taking part. It becomes talk of the town sometimes. I have seen many my plays. I was criticized or I was appreciated for a long time to come. Maybe after a month, I was seeing articles in papers. So to create a discussion, to create a kind of एक हलचल पैदा करना जी वो जरूरी होती है जी मैसेज होना प्ले में जो है ना मैसेज इज नेवर डूज एंड डोंट्स दैट मैसेज तो आपके बच्चे भी स्कूल में नहीं सुनना चाहते जो जो डूज एंड आपको डोंट्स सोचने पे मजबूर करती है, जो आपको दैट्स द एक पॉइंट दैट इज द पॉइंट सो मैसेज वही से शुरू होगा जहाँ खुद सोचकर आप उस पर कुछ इसीलिए तो ब्रेक का थिएटर जिन लोगों को पता है बहुत एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। यस, यस। और इवन आपका लास्ट ईयर का जो प्ले था, पंजाबी लैंग्वेज का जो था, मतलब मैं शायद थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स ना समझी हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी पूरी तरह से तो नहीं आती। लेकिन जो मैसेज मुझे वो प्ले देख के मिला कि भई आई शुड गो एंड रिस्पेक्ट माय ओन लैंग्वेज। अगर मैं मेरी खुद की मदर टंग की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, so that's the message, such a strong message, and even though I did not understand the language, लेकिन वो message मुझे उस theater से convey करा गया. So you know Thank you. that's It makes me happy. Your comments make me happy, yes, naturally. thank you. It is fantastic. So आप writer भी हैं, आप director भी हैं. As what do you identify yourself as most? uh, this again is a very difficult question. Generally, what I answer always is when I write, वो I ऐसे try है to ना be कि आपको director. दायां हाथ पसंद है कि बायां हाथ पसंद वो दोनों हाथ मिलकर तो जरा अच्छी ताकत बन जाते हैं लेकिन मैं है? ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ ना मधुरा बेटा उस समय मैं डायरेक्टर भी होता हूँ हम्म, जब मैं डायरेक्ट करता हूँ उस समय मैं राइटर भी होता हूँ सो हम्म, ये दोनों रोल मिक्स चलते हैं लेकिन एक दूसरे को असिस्ट करते हैं लिखने वक्त डायरेक्शन मुझे असिस्ट करती है और डायरेक्शन के समय मुझे मेरी राइटिंग असिस्ट करती है तो उनको छोड़ नहीं मैं सकता तो दोनों को साथ लेकर चलता हूँ शायद थोड़ी बहुत जो सक्सेस मिली है मामूली सी इसी वजह से एब्सोल्युटली मैं बहुत ही मतलब आई एग्री विथ यू क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि तुम डांसर हो कि एक्टर हो। मैंने कहा हम्म, मैं दोनों हूँ। जब मैं डांस करती हूँ तो मैं एक्टिंग भी करती हूँ और जब मैं एक्ट करती हूँ तो मैं एक्चुअली डांस भी करती हूँ। डांस खाली सही बात डांस नहीं हुआ। तो या आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। तो इफ वी कम बैक टू आवर प्ले, जो अप्रैल 6 को हम लोग कर रहे हैं, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विथ यू ऑन दिस।
रिश्तियां दा I'm की very रखी। happy. I'm very happy to have you in that play. It's two challenging roles for me, and I'm loving it. I'm just absolutely loving it. So It's nobody not a should. role. There are two roles. Tell people. You are doing Let two them roles. find out. So, my question to you is, it's such a powerful playwright. मुझे मतलब ये बात करते वक्त भी मुझे मतलब गूज बम्स आ रहे हैं कि तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पार्टीशन का क्या आप शेयर कर सकेंगे? आई नो इट्स Yeah, 2 I was मिनट में born after मतलब the ये war. एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा और 2 मिनट तो मतलब कोई भी समय काफ़ी नहीं है इसके लिए I लेकिन can try. I can try a bit. मेरा तो जन्म पार्टीशन के बाद हुआ था. ओके, लेकिन I was born in city of अमृतसर, जिसने जी, पार्टीशन का बहुत सारा जो दबाव झेला हुआ है. जी। तो मेरी गली में जहां मैं रहता था, आमने सामने कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पार्टीशन के जो नेगेटिविटी है उसमें पार्टिसिपेट किया था. हुँ, तो मुझे हुँ। उनकी कहानियां सुन सुनकर कई बार हंसी आती थी, कई बार रोना आता था. सबसे अजीब कहानी मैं जो आपको सुना सकता हूँ, वो उस प्ले में भी आपको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम हंसेंगे लेकिन अंदर से वो दुखदाई बात होगी. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रुलाने के लिए मजबूर करेगी लेकिन अंदर से वो थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी भी, ऐसे लोग भी थे, अच्छी बात है. तो मेरे घर के सामने एक परिवार था जिसका एक मेंबर बहुत बड़ा गुंडा था शहर का. तो जब पार्टीशन हुई, उसने एक शूज की दुकान को लूटा. अच्छा। लूट कर जब लाया सारे शूज को, तो घर आके देखने लगा, वो तो एक साइड के शू ले आया सारे. अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि इसमें हंसी भी आ रही है. कितने सारे दर्द लुके हुए हैं कि बिल्कुल, जिस बिल्कुल बंदे का मतलब वो इतना दुकान थी वो उजड़ इट इज़ गया. सच अ इसको मिला ही येस। कुछ नहीं बेचारे को. तो क्या है ये बड़ी जिंदगी अजीब सी है. कितना कितना मतलब अ, मजाक है. अपने आप से भी मजाक किया, किसी के साथ भी किया, और टोटल पार्टीशन ने ये मजाक हमारे साथ किया. लेकिन ये कहानी, नाटक मुझे इसलिए बहुत प्यारा है. लेट मी टेल इट टू द लिसनर्स that today I am in 2024. This play was written in 1981. वाओ! I wrote this play about 42 to 43 years back. I was just 30 at that time. And the memories of partition were very fresh. My father was living, who had seen everything that happened during that partition. पार्टीशन एक पंजाब के लिए खास तौर पर और बंगाल के लिए एक ऐसा दर्द है जो कम से कम एक दो जनरेशंस हम साथ लेकर जाएंगे. हम इस दर्द से मुक्त नहीं हो सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ट्राई टू इमेजिन, जिस पार्टीशन ने एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों, 1.5 आई करोड़ लोग जो डिस्प्लेस हुए. 1.5 करोड़. आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते हैं मिलियन बिलियन के हिसाब से. आई कांट काउंट. इट और डज़न्ट मैटर या और आई कांट इमेजिन मुझे 10 तो lakh people, 10 lakh people, which means 1 million people, they were killed by the people who spoke the same language, who had almost the same culture. 1,50,000, more than that, women were raped. जिनको हम अपनी बहनें कहते थे, अपनी माएं बोलते थे, अपनी बेटियां बोलते थे, they were raped. इतनी शर्मनाक घटना शायद दुनिया के इतिहास में कहीं और नहीं मिलेगी. अपने आप को मैं रेप कर रहा हूं, मैं अपने आप को मार रहा हूं. इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है. लेकिन सुखद जो पार्ट है इस समस्या का वो ये है कि आज भी अगर पाकिस्तानी पंजाब से हिंदुस्तानी पंजाब में कोई जाएगा, वो एक दूसरे के गले लग के रोएंगे. हिंदुस्तानी पंजाब वाला अगर पाकिस्तानी पंजाब में जाता है,
तो ऐसे लगेगा जैसे इनका कितनी सेंचुरीज का रिश्ता था जो टूट गया, क्योंकि नीचे लैंग्वेज और कल्चर कॉमन है। जब हमें धर्म, मजहब या पॉलिटिक्स का ट्रिगर मिलता है, हम एक दूसरे की जान लेते हैं। जब हमें लैंग्वेज और कल्चर, सकाफत, सभ्याचार, संस्कृति की बात हम करते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए जान देते हैं। तो मैं उस संस्कृति और लैंग्वेज पर टिक कर बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि ये हमारे रिश्ते जो है, इसका नाम बेशक कोई ना हो, लेकिन इनको तोड़ा नहीं जा सकता। और मधुरा बेटा, मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नाटक को अभी तक शायद 55 ग्रुप दुनिया में खेल चुके हैं। 8 बार तो मैंने इसको रेज किया। 55 ग्रुप, हजारों इसकी प्रोडक्शंस हो चुकी हैं। अभी लास्ट ईयर ये प्ले पाकिस्तान के लाहौर के अल हमरा थिएटर में खेला गया। अभी 2 महीने पहले ये जयपुर में खेला गया। कुछ साल पहले मैंने इसको कनाडा में खेला था। इस बार मैं इसको यहाँ रेज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये प्ले हमारी हड्डियों में, हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में है। इसका दर्द जो है, इस पर रोना चाहिए मुझे, तभी मुक्ति मिलेगी मुझे। अपने आप को मुक्त करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं यही करता हूं कि मैं रोता हूं। हमने क्या किया, क्यों किया। और आई सल्यूट सादत हसन बंटो, who wrote this story. Basically I expanded it. मुझे याद है 5 साल पहले जब ओलंपियाड, एक थिएटर का ओलंपिक्स होता है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इस प्ले को देखा दिल्ली में जब मैंने किया। तो राजमोहन गांधी एक बहुत बड़े इंसान है हिंदुस्तान के, ग्रैंड सन ऑफ महात्मा गांधी। राजमोहन गांधी जैसे हिस्टोरियन, 80 इयर्स की उनकी उम्र होगी, शायद ज्यादा ही हो, वो मेरे गले लग के रोते रहे। हम दोनों रोते रहे। यही एक रिपेंटेंस है, यही एक पछतावा है जो हमें रिडीम कर सकता है। इसलिए मैं बार बार करता हूँ। सॉरी, माहौल को मैंने थोड़ा गमगीन कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है, बट आपके इस इमोशन से, आपके इस बातों से मैं एटलीस्ट 0.5% शायद समझ सकती हूँ कि क्या शायद गुजरी होगी उन लोगों पर। और इट्स आपका जो ये डूइंग दिस प्ले इन डिफरेंट कंट्रीज, और प्रिजर्विंग दिस स्टोरी एंड प्रिजर्विंग दीज इमोशंस जो है, मुझे लगता है ये आपका कर्म आपको बहुत ही अलग जगह पर पहुंचाता है। और इसका फॉर्चून आपको मतलब बहुत ही नहीं अबेंडेंस बेटा, में। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता इस प्ले में। तुम तो जानती हो, अब लिसनर्स को भी बता दूं, व्यूअर्स को बता दूं कि 16 लोग काम कर रहे हैं। और शिकागो जैसी धरती पर, जहाँ इतनी दूरी पर लोग रहते हैं, 16 लोगों का इकट्ठा होना जूम पर भी मुश्किल है। अभी तक एक बार भी हम इकट्ठे नहीं हो पाए। और बहुत अ, डिफिकल्ट है, शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। और आप इतनी एनर्जी से हम सबके बीच में आपकी एनर्जी मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं नहीं, पर मैं बहुत खुश हूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, अगर तुम इजाजत दो, तो मैं करवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बहुत बड़ी, प्लीज आप हल्की प्ले के बारे हल्की में सी, बताइए, हल्की सी। इंट्रोड्यूस जैसे करिए। जैसे इस प्ले में ये प्ले बेसिकली तो यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उन्होंने अपना सब कुछ बांट लिया। धरती बांट ली, रेलवेज बांट लिए, जहाज बांट लिए, एवरीथिंग वट एवर दे हैड, दे डिस्ट्रीब्यूटेड इट ईदर टू पाकिस्तान और टू इंडिया। लेकिन इनको 2 साल या साल के बाद ख्याल आया कि पागल खानों में जो पागल बैठे हो, वो तो बांटे ही नहीं अभी। देन दे स्टार्ट, आई मीन, आस्किंग देम कि आप हिंदुस्तान जाना चाहते हो कि पाकिस्तान। अब उन बेचारों को पाकिस्तान का आइडिया ही कुछ नहीं है। So idea of a new country is very new to them. I mean, they can't I mean digest this thing कि कोई और कंट्री है। तो वो बहुत बहुत असमंजस में है, बहुत बहुत परेशान होते हैं। तो ये प्ले की जो बेसिक बात यही है। और इसमें जो मैंने जैसे ट्रीट किया और जैसे उसने भी ट्रीट किया, मंटो ने, उसमें ये बात स्पष्ट है कि जिनको हम पागल कहते हैं वो समझदार लोग हैं,
जो हम अपने आप को समझदार कहते हैं, असली पागल हम हैं। तो जो लोग जो पागल मेरे साथ 16 जुड़े हैं वो भी कमाल के आदमी हैं। जैसे पवन कुमार मेरा एक बहुत पुराना आर्टिस्ट है, मोहाली से 40 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। वो सिंसिनेटी से आता है इसमें रोल करने के लिए। राजेश और पवन कुमार ने एमए ड्रामेटिक्स किया हुआ पंजाबी यूनिवर्सिटी से। राजेश को पवार भी उसी के साथ उसने एमए ड्रामेटिक्स किया हुआ। गुरमुख बुल्लर जिसने ये ग्रुप शुरू किया, ही इज डूइंग वन ऑफ द मेजर रोल। बट देन वेरी इंटरेस्टिंगली देयर आर 4 सच पीपल जिन्होंने जिंदगी में पंजाबी शायद घर पे कभी नहीं बोली। वन इज विनीत, he is doing a major role. जसराज is doing a major role. मधुरा जो मेरा इंटरव्यू कर रही है, इस ये 2 मेजर रोल कर रही है, एंड शी इज डूइंग इट इन पंजाबी. व्हाट अ फाइन एंड हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस शी इज. But then to render it in a language which is not her own, that shows her dedication to the art, and she is a very fine actress. प्रीति है एक लड़की, प्रीति राज, वो सिंधी लड़की है, उसको मिक्सी लैंग्वेज दी है। फर्स्ट टाइम शी इज टेकिंग पार्ट इन पंजाबी प्ले। नितिश फर्स्ट टाइम आ रहा है प्ले करने के लिए एंड डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जसबीर मान आपके शहर की एक औरत है जिसने पहली बार प्ले में पिछले साल मेरे साथ काम किया था। शी इज डूइंग ए वेरी गुड रोल। देन मिस्टर पॉल है, मिस्टर हैरी सिद्धू है, रिचा चांद हैं। ये छोटे छोटे रोल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो निभा रहे हैं। नुमान कैसर नाम का एक बंदा है, जो पाकिस्तान के एक बहुत नामवर एक्टर थे। उनका नाम था इजाज कैसर। तो वो इजाज कैसर के बेटे हैं। तो ही इज डूइंग अ रोल फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज, बट सन ऑफ एन आर्टिस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो पाकिस्तान से को बिलोंग करता है और काम कर रहा है। रिचा काउंडल इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। शी हैज come to Chicago recently, maybe 1 year back. She is doing a role. चरणदीप सिंह बहुत एल्डरली हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं और हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। He is also doing a role. मनदीप कुमार is doing a role. I do not know मैं सभी के नाम ले पाया हूँ कि नहीं, but everybody is doing his or her best. नो प्रॉब्लम अगर आप, बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, हम यहाँ पर आउटलैंड मीडिया विल शो द फ्लायर हियर ऑन दिस इंटरव्यू सो दैट पीपल कैन सी ऑल द एक्टर्स, नो मोर अबाउट द प्ले, द थिएटर, द टाइम, और ये सब के बारे में अभी हम फ्लायर दिखाएंगे इसी इंटरव्यू पे ताकि लोगों को पता चले। बट दिस इज फैंटास्टिक। आई मीन 16-17 लोगों को लेके काम करना, उसके रिहर्सल्स करना, और सभी मतलब एज अ लव टू द थिएटर काम कर रहे हैं इसमें। एंड ये प्ले फ्री ऑफ चार्ज आप ऑफर कर Yeah. रहे हैं, विच इज आई हैव नो आइडिया। आई मीन आपने कभी मेंशन किया कि आप मराठी प्ले देख के आए, $45 टिकट था, बट आप ये प्ले फ्री कर रहे हैं, और इतना पावरफुल मैसेज जो इस वक्त या किसी भी वक्त हर एक ह्यूमैनिटी को इस मैसेज की जरूरत है। तो आप उस मैसेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो थोड़ा आपने तो टच कर लिया, बट हाउ आर यू, हाउ डज अ स्पेक्टेटर, एन ऑडियंस, इस प्ले के देखने के बाद इमोशनली, इंटेलेक्चुअली इस प्ले से क्या ले जा सकता है? क्यों क्यों किसी को इस प्ले में आना चाहिए आपके हिसाब से? इसका उत्तर देने से पहले, जवाब देने से पहले, मैं छोटी सी बात ये कर दूं। जो तूने कहा कि ये फ्री दिखा रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए क्यों फ्री दिखा रहे हैं। जी सिर्फ प्ले ही नहीं हो रहा, उसके बाद पोइट्री का सेशन भी हो रहा है। और शिकागोलैंड के बहुत सारे पोइट्स जो हैं, जिसमें शिकागो के अपने रहने वाले, इसके नज़दीक रविंद्र सहरा पंजाबी के नामवर पोइट हैं, आबिद रशीद, जी कशिश होशियारपुरी, साजिद चौधरी साहब, रकिंद कौर एक लड़की है, गुरलीन कौर है, वहाँ से टोरंटो से भी भूपेंद्र दुले और कुलविंदर खैरा आ रहे हैं, राजलाली बटाला यहाँ के लोकल हैं, मिस्टर गुरबख्श सिंह बंडाल जो हैं वो नज़दीक ही रहते हैं। ये सभी लोग भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। और ये सारा कुछ इसीलिए पॉसिबल हो रहा है कि कुछ लोगों ने
इस प्रोग्राम को बहुत ही खुले मन से स्पॉन्सर किया है। और उसे सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप जो है वो मिस्टर दर्शन सिंह धालीवाल की है। और मैं ये बात बताते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब जिस प्ले का तुमने जिक्र किया ना, सानी सच कहंदा सी, जब वो देखा उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड दैट आई गॉट। उन्होंने कहा था कि आतमजीत सिंह, आप जो भी काम पंजाबी में शिकागो लैंड में करेंगे उसके पैसे बारे नहीं चिंता करनी, इससे बड़ा इनाम क्या मिल सकता है। तो क्या मैं बात है, क्या चाहूंगा, बात है, आर्टिस्ट के ये लिए सबसे बड़ा है, ये बिल्कुल। मेरा बिगेस्ट अवार्ड है, साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी से भी बड़ा है, कि जब जो काम करना करो, पैसे की चिंता मत करो। और जी, वो सपोर्ट कर रहे हैं हमको। और उनके साथ बहुत सारे और भी हैं स्पॉन्सर्स हमारे, और हमारी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। आपको लोगों को पता होगा कि रंजीत सिंह जी जो यहाँ पर होते थे शिकागो के काउंसलेट जनरल में, जी, वो अब तो, बहुत अच्छे से मालूम है, हाँ, जी हाँ, जी वो हाँ। चले गए हैं बेशक। इन फैक्ट I would like to share this information with everybody. Even now he is coordinating all the efforts with the जी, help of two gentlemen here, Dr. Harjinder Singh Khera and Raj Lali Batala. He is doing everything here. So that is about why it is free. Sometime मैं सोचता हूँ कि फ्री होने की वजह से भी शायद हम इसका बोल पूरा नहीं पा रहे, हमें शायद टिकट लगानी ही चाहिए, बट देन इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो लेकिन अगर हम वाकई इज्जत करते हैं अपने आर्ट की, अपनी लैंग्वेज की, तो हमें आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए कि ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपनी नफरत को, या पॉलिटिकली जो मोटिवेट हमें करते हैं एक दूसरे को मरने मारने के लिए, उसको किस हद तक सुनना चाहिए, उसकी क्या क्या सीमा होनी बात है, चाहिए। क्या बात है, द लास्ट लाइन वाज ये वेरी ये प्ले पावरफुल। आज भी रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट। क्या उसकी कोई सीमा होती है? कहां जाके रुकेगा ये सारा सिलसिला? बेसिक बेसिक धर्म तो हमारा इंसानियत है। उस इंसानियत के वास्ते मैं चाहता हूं आप इस प्ले को देखने के लिए आए। ओह माय गॉड, आई मीन, ये सुनकर अगर कोई ना आए तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। आपने बिल्कुल मतलब यू दैट वाज फैंटास्टिक कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड यही है कि ऑडियंस उसके आर्ट में बिलीव करे, और आपके पास ऐसे स्पॉन्सर्स आके आज जो जिन्होंने आपके आर्ट पे बिलीव करके इस पूरे प्ले को खड़ा किया है 16-17 एक्टर्स के साथ, और वो भी फ्री टू द ऑडियंस टू गेट दैट मैसेज कि हम क्या कर रहे हैं, सोचने पे मजबूर करना है कि किस वजह से हमारी, how are we affected with the political situations and all, and what should we do, and the humanity is our basic religion. Kitna fantastic message. Please come to this play April 6th. Atamjit Ji, any closing comments, any closing messages for us, for the new generation, or for the theater, or anything that you want to share, please? आ, अगर चाहते हैं आप दोस्तों, बहनों, भाइयों के आर्ट को प्रमोट किया जाए, आर्ट को जिंदा रखा जाए, तो अभी तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, आपका दिल से आना जरूरी है। जब आप दिल से आते हो तो टाइम पर आना जरूरी है। जब आप टाइम पर आके अंदर बैठ जाते हो तो प्ले पर कंसंट्रेट करना जरूरी है। फोन को थोड़ा विराम देना पड़ेगा आपको। और टाइम पर नहीं आओगे, अगर हॉल भर गया तो कोई रास्ता नहीं, दरवाजे पहले बंद करने पड़ सकते हैं। प्लीज डू कम। 5 बजे प्ले स्टार्ट होगा, 4:30 पर बुलाया गया। उस पर चाय पानी का भी जिक्र है, कार्ड हमारे पर। आइए, बातचीत करिए, प्ले देखिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए, आप डिस्कस करिए हमारे साथ, अपने विचार दीजिए, ताकि हम आगे से भी लिख सकें, आगे से भी कर सकें। एंड आई हैव वंडरफुल टीम एंड वन रिप्रेजेंटेटिव मदरा इज इन फ्रंट ऑफ थैंक यू सो मच। आपको, आपके चरण स्पर्श, यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक यू वेरी लेकिन मच, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने इन्होंने जो अभी कहा कि आप 4:30 को आइए, क्योंकि हम बिल्कुल शार्प प्ले शुरू करेंगे, और ये मैंने देखा है आतमजीत जी के काम में कि बिल्कुल टाइम पे काम शुरू होता है, टाइम पे खत्म होता है, और
सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा फ़ोन मत चेक करिए, लेकिन इस प्ले को देखते वक़्त मैं ये गारंटी के साथ आप सबसे कह सकती हूँ कि आपको फ़ोन उठाने की नौबत भी नहीं आएगी। इतना पावरफुल ये प्ले है, एंड आई एम फॉर्च्यूनेट टू बी अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस बिग ह्यूज प्रोडक्शन, एंड आई विल वेलकम यू ऑन April 6th. प्लीज़ कम एंड वॉच मदरा, अस। ये भी कह दो, ये भी कह दो, ये भी कह दो कि 10 साल के कम के बच्चे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी साइकी जो होती है ना उस पर नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है, 10 तो साल दैट इज़ अ कम से वेरी कम। ठीक है, the very good logistics here. So 10 years and up only, please. So we Yeah, can yeah, say about teenagers are yeah. fine to come, or this That's is in Punjabi language. So, yeah. but even if you don't understand full Punjabi, you can come and still get the message out. I don't understand full Correct. Punjabi, and I still cry in every single scene, even in a rehearsal. So it's not about crying, it's about getting the message, again preparing you to think, and thinking how should we live this life that we are given. And thank you so much, Thank Outland you. Media and Harry, to give me this Thank you. opportunity to have this heartfelt discussion with Dr. Atamjit Ji. This is my dream come true, and thank you so much for watching. Thank you very much. And we'll see you all on April 6th. Thank you so much, Atamjit Ji.